दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आराम करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या होता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Anand Ranganathan. Is this really about social justice, or is this a little bit about being on the back foot? Given the fact that the draft broadcast bill has been withdrawn, then not many bills have gone to select committees, but the Waqf board bill also went to a JPC, and now there is this U-turn or so-called temporary backtracking of the lateral entry rule. Do you think there is a perceptible change, or this is only about social justice? What does it look to you? Well, the way it looks to me is that the BJP was asked to bend and it has started to crawl. How can it be right now the ad revoked on the basis of following the constitution and following social justice? When the same people brought out the ad 3 days ago, then it was not saving the constitution and for social justice. Obviously, it's a backtracking. Look, as a very famous economist said, Navika, a nation that does not respect the need for efficiency in its quest for equity will turn up empty on both. Couple of points on the lateral entry issue because it's very important. It's a very tempered debate and I'm glad we're having it. Number one, I am again astonished by the hypocrisy of the Congress and Rahul Gandhi and his supporters when they criticize lateral entry. Bhai, apni history to pad lo. No one has inducted as many bureaucrats and technocrats laterally than the Congress. Starting from Jawaharlal Nehru, who inducted V. Krishnamurthy, D.V. Kapoor, I.G. Patel, Mantosh Jain. These men not only headed PSUs, ministries, secretariats, but one also went on to become the RBI governor. Indira Gandhi then inducted Manmohan Singh as a lateral entry. The issue here is वाजपेयी जी आपने तो नहीं डरा दिया, आपने डरा दिया क्या? एलजेपी ने डरा दिया क्या? क्या ये 240 सीटों की नई पॉलिटिक्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ये अपना अपना नजरिया देखने का। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, who has considered our request. Mr. Chirag Paswan approached Mr. Modi when it came to his knowledge that they are issuing the vacancy circular like this. And the mandate of the Constitution of India is prevailing, and Prime Minister Modi has shown its commitment towards the social justice, and he has shown his courage to withdraw the said letter also. And this is not the first time he is doing like this. Navika, you remember Ramvilas Paswan was alive, and that point of time Supreme Court has diluted the SC/ST Atrocities Act. So there was hue and cry. And Mr. Ramvilas Paswan approached Modi ji and convinced him, and accordingly Narendra Modi ji have brought a bill in the parliament, and the position was of that act was restored as it is. So Well, time and I don't know. Social justice between 2019 and 2021, there have been almost till 2023, there have been almost 63 lateral entries. 8 were OBCs. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर ये देखिए, जो वीडियो में आनंद रंगनाथन ने बोला है कि ये जो लैटरल एंट्री जो ट्वीक किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये जो यूपीएससी में लैटरल एंट्री होना चाहिए उसको ट्वीक करके अपना ऑर्डर रिवर्स किया था। दिस इज़ वन ऑफ दोज यू टर्न गवर्नमेंट तो पहले ही हो गया था, 2019 से पहले इतना यू टर्न नहीं ले रहा था, लेकिन तब भी लिया था। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उस टाइम यू टर्न लिया था, उसको पास कर दिया था एक हाउस में, दूसरे हाउस में पास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उधर मेजॉरिटी भी नहीं था, और इधर राहुल गांधी ने सूट बूट के सरकार नाम का एक जाइब डाल दिया। उस जाइब से डर के रिवर्स कर दिया उस ऑर्डर को, उस एक्ट को। उसके बाद बहुत सारे और भी यू टर्न्स किए हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट यू टर्न वाज दैट फार्म लॉ का यू टर्न। फार्म लॉ का यू टर्न तो पहले पास कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। पहले बहुत सारे जो फार्मर यूनियंस थे दोज वर विद द गवर्नमेंट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स विद द गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट। और ऐसे गवर्नमेंट को काउटाउ करके देखने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने
और कांग्रेस प्रदेशित राज्य जो थे, पंजाब, हरियाणा में भी बहुत सारे जो जाट थे और यूपी में जो जाट थे, वो तीनों मिलके एक इलीगल प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट का ये एक रिज़ल्ट निकला कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक 3 बहुत प्रोग्रेसिव, बिल्कुल मार्केट के लिए सही तरह, जो लोग, जो फार्मर्स हैं बहुत सारे, जो अपना प्रोड्यूस कहीं भेज नहीं सकते थे, उनको भेजने का एक नया तरीका दिया था कि आप बाहर भी बेच सकते हो मंडी से। वो बेचने का प्राइस मार्केट प्राइस होगा, पर आप अच्छी तरह बेच सकते हो। बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं, वो बेच दे सकते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स भी बनते हैं और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो भी अपना कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बनाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। वो एक बहुत अच्छा एक्ट था, ये 3 एक्ट। उन तीनों को रिवर्स कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट couldn't handle the heat because they never knew that protest will go this hard and this long। और उधर बहुत सारे खालिस्तानी वालिस्तानी भी आ गए। ये सब तो आपको पता ही होगा कि वो इंडिया गेट में हमारा क्या हुआ था, इंडिया रेड फोर्ट में हमारा जो तिरंगा था, तिरंगा की जगह वो निशान साहब लगा दिया। कोई भी झंडा इंडिया के तिरंगे से ऊपर नहीं है, भगवा भी नहीं है और ये हरा परचम भी नहीं है, और भी जो भी रिलीजियस जो झंडे हैं वो नहीं है। बस तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए इंडिया का, वो भी ठीक तरह नहीं कर पाए थे। उसके बाद रिवर्सेस और भी रिवर्सेस किए थे। उनका जो एक एंटी अपीजमेंट स्टैंड था, उस स्टैंड्स को भी रिवर्स कर दिया और पसमानदा जो एक लो स्ट्रेटा ऑफ मुस्लिम्स हैं, उनको अपीज़ करने के लिए उधर तुष्टिकरण भी लगा दिया, टू अपीज़ द अपीज़र। उनको भी अपीज़ करने का एक फॉर्मूला लेके आ गया इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। उस रिवर्सेस के कारण ही ये जो 2024 का इलेक्शन था उसमें बुरी तरह हारे। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी था और हिंदुओं का भी एक मलाल था और कास्ट में बंटवा दिया था हिंदुओं को, जो इंडिया अलायंस ने पूरी सक्सेसफुली, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट couldn't हैंडल दैट PR मशीनरी ऑफ इंडिया अलायंस, खासकर राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ही तो ये लैटरल एंट्री का जो पूरा शगुफा है उसने ही तो लगाया था। ये बस 43 लोग पोस्ट थे इसके लिए, 43 लोगों का पोस्ट के लिए एक रिवर्स कर दिया। और रिवर्स किस लिए किया? क्योंकि एक बंदा है, उसका नाम है दिलीप मंडल, जो पहले जो भी आइडियोलॉग्स हुआ करते थे RSS के, हिंदुत्व के, उन सबको गाली देता था। पेरियार जो रैपिडली कास्टिस्ट बंदा था, पेरियार उसका साथ देता है। BR अम्बेडकर तो समझ सकते हो आप कि ही वॉज अ प्रोग्रेसिव मैन, ही वॉज अ, सब जगह पे वो अटैक करते थे, तो फिर उनके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। पर ये जो एक मिसकंस्ट्रू किया है, ये जो एक 240 सीट्स जो BJP को मिला है, वो मैंडेट को मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं कि दिस इज़ अ कास्ट बेस्ड मैंडेट, इट्स नॉट अ रिलीजन बेस्ड मैंडेट। आपको हिंदुत्व में ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना, यू कांट प्ले ऑन देयर पिच। जो कांग्रेस इंडिया अलायंस का पिच है, उस पिच में मत खेलो। आप पिच को चेंज करके उसको अपना हिंदुत्व पिच बनाओ और हिंदुत्व पिच में उनको खेलने पे मजबूर करो। और वो हिंदुत्व पिच कैसे बनता है? वो जो एक्ट है, वक्फ एक्ट, और भी जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इन सबको हटाओ। आप देखो कैसे पिच बदलता है, कैसे यही लोग जो इधर अभी थोड़ा सा तांडव नाच रहे हैं, वो उधर ही रोने लगेंगे, वो बोलने लगेंगे दिस इज़ एंटी दैट, दिस इज़ एंटी दिस। वो पूरी तरह अपना पॉलिटिक्स उधर उसके तरफ लगा देंगे। जब वक्फ एक्ट को आपने एक अमेंडमेंट लेके आके रेक्टिफाई करने की कोशिश किया तब कितना ज़्यादा शोर मचा था इंडिया अलायंस के लोगों का। वैसे ही शोर मचाने के लिए आपको और भी ऐसे एक्ट्स लेके आने पड़ेंगे जो प्रो हिंदू हों, हिंदुओं के लिए करिए, आप अपने वोट बैंक के लिए करिए। ये जो दूसरे वोट बैंक को साजने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, वो होने वाला नहीं है। उस इलेक्शन का जो एक रिज़ल्ट दिखाई दिया था उससे पता चल जाना चाहिए था आप लोगों को, पर वो आप लोगों को पता भी नहीं चला और रास भी नहीं आया आपको। फिर वो पता करिए, आप उसको दरमियान रखते हुए अपना जो पॉलिसीज़ है, अपना जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाइए, तभी जाके ये जीत सकते हैं आप। और सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका
जो हमको देगा साथ हम उसका करेंगे विकास, जिसका साथ जिसका हमारा साथ तो उसका हम विकास करेंगे। ऐसे बोलिए तो फिर ज़्यादा तुक बनेगी उसका। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली एंड टेक केयर दोस्तों।